اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مسلمہ کے خلاف جنگ جاری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنا آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمہ کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ کسی محافظ نے کہا اے نبی اپنا معجزہ دکھا۔ ایک اور محافظ نے کہا اپنا وعدہ پورا کر اے نبی، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ مارکا لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شیب دم، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بدل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا جو کافی وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، لیکن اندر جانا ضروری تھا۔ مسلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم میں دروازہ کھول دوں گا۔ برا بن مالک صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسا ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا رضی اللہ عنہ سراپا عشق تھے اور جو آتش نمرود میں کود گئے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا ابھی تک افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرات کر سکتا ہے۔ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا وہ کون ہے؟ وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔
कोई मुर्तद ललकारा, गर्दन मार दो। एक और ने कहा, पकड़ लो, मार डालो। एक शोर उठ गया। बेशुमार मुर्तदीन तलवारें और बर्छियां ताने बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ दौड़े। बरा रज़ी अल्लाह अन्हु अभी दरवाजा खोल नहीं सके थे। उन्होंने तलवार निकाली और बनु हनीफा का जो आदमी सबसे पहले उन तक पहुंचा था, उसे बरा रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार के भरपूर वार ने वहीं रोक दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो बर वक्त पीछे को घूमे। बैक वक्त दो आदमियों ने उन पर बर्छियों के वार किए थे। बरा रज़ी अल्लाह अन्हु फुर्ती से एक तरफ को हो गए। दोनों बर्छियों की अन्नियां जो बरा रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म में उतरने के लिए आई थी, दरवाजे में उतर गई। बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी तेजी से तलवार चलाई और दोनों आदमियों को उस वक्त घायल कर दिया जब वो दरवाजे में से बर्छियां निकाल रहे थे। कई मुर्तद बरा बिन मालिक पर मिलकर हमला करते थे और बरा रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे के साथ पीठ लगाए बड़ी तेजी से तलवार चला रहे थे। उनकी जबान से दो ही नारे गरजते थे, अल्लाह अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वार रोकते, वार करते और दरवाजे खोलने की कोशिश करते थे। तारीख में लिखा है कि बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनु हनीफा के बहुत से आदमियों को हलाक और जख्मी कर दिया और दरवाजा खोल दिया। बाज़ मौरिखों ने लिखा है कि बरा बिन मालिक के पीछे चंद और मुसलमान दीवार फांद कर अंदर चले गए थे, जिन्होंने तीरों से मुर्तदीन को दूर रखा और बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरवाजा खोल दिया। इस पर तमाम मौरिख मुत्तफिक हैं कि सबसे पहले बरा बिन मालिक दीवार फांद कर अंदर गए थे। दरवाजा खुलते ही मुसलमान इस तरह दरवाजे में से अंदर जाने लगे जैसे नहर का किनारा कहीं से टूट गया। बहुत से मुसलमान खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर दीवार पर चढ़ गए। ये सब तीर अंदाज थे। उन्होंने बनु हनीफा पर तीरों का मेह बरसा दिया। मुसलमान जो अंदर चले गए थे वो बनु हनीफा पर कहर की मानंद टूटे। मुर्तदीन का कत्लेआम होने लगा। उनके भाग निकलने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो अब जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। उनका नबी ख्वाह झूठा ही था, उनके साथ था। उसकी ललकार सुनाई दे रही थी और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुर्तदीन की तादाद बहुत ज्यादा थी जो बड़ी तेजी से कम होती जा रही थी। बाग खून से सैराब हो रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के जहन में यही एक इरादा था कि मुसलमा को कत्ल किया जाए वरना लड़ाई खत्म नहीं होगी। लेकिन मुसलमा कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुसलमा कज़्ज़ाब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को तो नजर नहीं आ रहा था। एक और इंसान था जिसकी उकाबी निगाहों ने मुसलमा को देख लिया। वो हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब थे। बर्छी निशाने पर फेंकने में वहशी का मुकाबला करने वाला कोई न था। उसने एक बार अपनी बर्छी का कमाल सबको दिखा दिया था। एक रक्कासा के सर पर एक कड़ा जो कांच की औसत साइज का था, उसके बालों के साथ इस तरह बांध दिया गया था कि कड़ा उसके सर पर खड़ा था। वो नाचने लगी और वहशी बर्छी लेकर चंद कदम दूर खड़ा हो गया। उसने बर्छी हाथ में उठाकर तोली। रक्कासा रक्स कर रही थी। जो ही रक्कासा मौजू जाविये पर आई, वहशी ने ताक कर बर्छी फेंकी। बर्छी रक्कासा के सर पर खड़े कड़े में से गुजर गई। जंगे उहुद में वहशी बिन हर्ब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी तरह बर्छी फेंक कर शहीद किया और अबू सुफियान की बीवी हिंद से इनाम वसूल किया। उस वक्त वहशी मुसलमान नहीं हुआ था। फतेह मक्का के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में वहशी मुसलमानों के लश्कर में था। बाग के खूरेज मार्के में उसने मुसलमा को देख लिया। उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की जबान से सुन लिया था कि मुसलमा को खत्म किए बगैर लड़ाई खत्म नहीं होगी। वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमा की तलाश में दुश्मन की तलवारों और बर्छियों से और अपने साथियों के तीरों से बचता, लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से ठोकरें खाता सारे बाग में घूम गया और उसे मुसलमा नजर आ गया। मुसलमा अपने मुहाफिजों के नरगे में था जो इस कदर जांबाजी का मुजाहिरा कर रहे थे कि किसी मुसलमान को करीब न आने देते। वहशी को करीब जाने की जरूरत नहीं थी। मुसलमान मुसलमा के मुहाफिजों के साथ लड़ रहे थे और उनके इर्द गिर्द वहशी घूम रहा था कि मुसलमा पर बर्छी फेंकने का मौका और सही जाविया मिल जाए। उसे एक मौका मिल गया, लेकिन उसके रास्ते में एक खातून उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गई। वो भी मुसलमा तक पहुंचने की सही कर रही थी। वो अपने बेटे के साथ थी। वो मुसलमा के मुहाफिजों का हिसार तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो एक मुर्तद की तलवार ने उन्हें रोक लिया। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार से उसे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुर्तद के एक वार ने उम्मे अम्मारा का एक हाथ साफ काट दिया। उनके बेटे ने तलवार के एक ही वार से उस मुर्तद को गिराया और ये मुजाहिद अपनी माँ को साथ ले गया। वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु को मौका और जाविया मिल गया।
उसने बर्छी को हाथ में तोला और ताक कर पूरी ताकत से बर्छी मुसलमा पर फेंकी। बर्छी मुसलमा के पेट में उतर गई। उसके हाथों ने बर्छी को पकड़ लिया, लेकिन बर्छी अपना काम कर चुकी थी। मुसलमा के हाथों में बर्छी को पेट से निकालने की सकत नहीं थी। मुसलमा गिरा, उसे मरना ही था, लेकिन अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे तड़प तड़प कर मरने की अजियत से इस तरह बचा लिया कि उसका सर तलवार के एक जोरदार वार से उसके धड़ से अलग कर दिया। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमा की सरकटी लाश अभी देख ही रहे थे कि मुसलमा के एक मुहाफिज ने पीछे से इतना सख्त वार किया कि अबू दुजाना गिरे और फिर उठ न सके और शहीद हो गए। एक मुर्तद गला फाड़ कर चिल्लाया, बनु हनीफा, हमारे नबी को एक स्याह फाम हबशी ने मार डाला है। मौरिख इब्ने हिशाम ने लिखा है कि बाग के अंदर मार्के की खूंरेजी में ये आवाजें सुनाई देने लगी, नबी मारा गया, मुसलमा कत्ल हो गया। मुसलमा कज़्ज़ाब के कत्ल का सेहरा बिला शक व शुबा वाशी बिन हर्ब के सर है। वाशी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी बड़ी अजीब गुजरी। बताया जा चुका है कि उसने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने मुसलमा को बर्छी खींच कर कत्ल किया था, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को जंगे उहुद में शहीद किया था। जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चंद लोगों को जंगी मुजरिम करार दिया था। उनमें वाशी का नाम भी था। उसे किसी तरह पता चल गया था कि उसे मुसलमान जिंदा नहीं रहने देंगे, तो वो मक्का से निकल गया और ताइफ में कबीला सकीफ के यहाँ जा पनाह ली। कबीला सकीफ को मुसलमानों ने जिस तरह शिकस्त दी थी वो बयान हो चुका है। उस कबीले ने इस्लाम कबूल किया और वाशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया और बैत के लिए और अपनी जान बख्शी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गए। आप अलैहिस्सलाम ने उसे कई बरस बाद देखा। आप अलैहिस्सलाम उसे अच्छी तरह पहचान न सके। आपने पूछा, क्या तुम वाशी हो? वाशी ने जवाब दिया, मैं वही वाशी हूँ और अब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जान बख्शी कर दी। वाशी बिन हर्ब रसूल करीम का गर्विदा हो चुका था। उसके सर पर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल था, जिसका वाशी को बहुत दुख था। वो मक्का से चला गया और उसने 2 साल ताइफ के इलाके में कभी यहाँ कभी वहाँ गुजारे। उस पर खामोशी तारी रहती और वो सोचों में गुम रहता। उसने इस्लाम को दिल से कबूल कर लिया था और वो सच्चा मुसलमान रहा। 2 साल बाद अपने बेचैन ज़मीर को मुतमईन करने के लिए वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो गया और उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों में रहना पसंद किया। यमामा की जंग में उसे पता चला कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमा को हलाक करने की कोशिश में। ये फर्ज उसने अपने जिम्मे लिया और फर्ज पूरा कर दिया। उसके बाद वाशी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों में रहा और कई लड़ाइयों में उसने बहादुरी के जौहर दिखाए। शाम की फतह के बाद वो इस्लामी लश्कर से अलग होकर हम्स में गोशा नशीं हो गया। मौरिखों ने लिखा है कि ऐसे मालूम होता था जैसे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह बनकर उसके ज़मीर पर सवार हो गया हो। उसने शराब नोशी शुरू कर दी, जो अय्याशी नहीं थी बल्कि वो अपने आप को फरामोश करके अलग पड़ा रहता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसे शराब नोशी के जुर्म में 80 कोड़ों की सजा दी, जिसका उस पर कोई असर न हुआ और वो शराब पीता रहा। जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे ऐसी शोहरत मिली कि लोग उसे अकीदत से मिलते, मगर वो होश में कम ही होता। जब कभी होश में होता तो लोगों को हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसलमा के कत्ल के वाक़यात सुनाता। लोग उससे यही वाक़यात सुनने के लिए जाते थे। उसने कई बार अपनी बर्छी हाथ में लेकर कहा, मैं जब मुसलमान नहीं था तो इस बर्छी से मैंने एक बहुत ही अच्छे आदमी को कत्ल किया और मैं मुसलमान हुआ तो इस बर्छी से एक बहुत ही बुरे आदमी को कत्ल किया। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक अजीम खातून थी। जंग उहुद में उन मुसलमान औरतों के साथ थी जो जख्मियों की मरहम पट्टी और देखभाल के लिए अपने लश्कर के साथ गई थी। उस लड़ाई में ऐसी सूरत पैदा हो गई कि मैदान पर कुरैश छा गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्ले बोलने शुरू कर दिए। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाल रखा था, मगर दुश्मन के हल्ले इतने शदीद थे कि आप अलैहिस्सलाम के मुहाफिजों का घेरा टूट गया। कुरैश का एक आदमी इब्ने कुमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। आप अलैहिस्सलाम के दाएं मुसअब बिन उमैर थे और उस वक्त उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा भी करीब ही थी। उन्होंने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरे में देखा तो जख्मियों को पानी पिलाने और उन्हें उठाने का काम छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ी। उन्होंने एक लाश या शदीद जख्मी की तलवार ले ली। इब्ने कुमा आप अलैहिस्सलाम पर हमला करने की बजाय आप अलैहिस्सलाम के मुहाफिज मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ गया। मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके साथ मुकाबला किया। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इब्ने कुमा पर तलवार का वार किया जो उसके कंधे पर पड़ा, मगर इब्ने कुमा ने ज़र्रा बख्तर पहन रखी थी, इसलिए तलवार उसका कुछ न बिगाड़ सकी। इब्ने कुमा ने घूमकर उम्मे अम्मारा पर जवाबी वार किया जो उस खातून के कंधे पर पड़ा और इतना गहरा जख्म आया कि वो गिर पड़ी। इब्ने कुमा ने दूसरा वार न किया
क्योंकि वो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहता था। अब जंग यमामा में उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे के साथ आई थी। यहाँ उनकी दलेरी का ये आलम था कि मुसलमा को कत्ल करने का खतरा मोल ले लिया, मगर उनका एक हाथ कट गया। वो दिसंबर 632 ईस्वी के आखिरी दिनों में से एक दिन था। हदीक़तुर रहमान सरसब्ज और हरा भरा बाग हुआ करता था जो लोगों को फल दिया करता था। वहाँ थके मांदे मुसाफिर आकर सस्ताया करते थे। वहाँ फूलों की महक थी, मगर अब वो हदीक़तुल मौत बन चुका था। उसका हुस्न खून में डूब गया था। उसकी रानाइयां लाशों तले दब गई थी। जहाँ परिंदे चहचहाते थे वहाँ जख्मियों की चीखों पुकार थी। जख्मी घोड़े बेलगाम दौड़ रहे थे। उनके टाप यूं सुनाई दे रहे थे जैसे मौत बेहंगम कह लगा रही हो। जब शोर उठा कि मुसलमा मारा गया है तो मुर्तदीन निकल भागने का रास्ता देखने लगे। वो तो पहले ही भागे हुए उस बाग में आए थे। उन पर पहले ही मुसलमान दहशत बनकर तारी हो चुके थे। बाग में वो हजारों की तादाद में मारे गए थे। वो ऐसी जंग लड़ रहे थे जो पहले ही हार चुके थे। अब उनके कानों में ये सदाएं पड़ी कि उनका नबी मारा गया है तो उनकी रही सही सकत भी खत्म हो गई। उनमें जो अभी तक लड़ रहे थे वो बाग से निकल भागने की कोशिश थी। शिकस्त उनके जहनों पर मुसल्लत हो चुकी थी। वहाँ से कुछ दूर मुसलमानों की लुटी हुई तबाहाल खैमागाह में सिर्फ एक खैमा सही सलामत खड़ा था। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा था। बनु हनीफा बाकी तमाम खैमे फाड़ कर पुरसे कर गए थे। वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे में भी गए, लेकिन वहाँ उनका अपना सरदार मुजा बिन मुरारा जंजीरों में जकड़ा बैठा था। वो लैला को कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मुजा ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि पहले मर्दों की तरफ जाओ, अभी औरतों को पकड़ने का वक्त नहीं। वो सब अपने सरदार के हुक्म से चले गए थे। इस तरह खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा महफूज रहा था। इस्लामिक शोध स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।